So good morning students. Today we will start revision of future indefinite tense first of all, and after it we will go towards future continuous tense. Okay, future indefinite tense. मैम बच्चों को एंटर कर लो। Okay. Okay students, then future indefinite tense I have already taught you, and I have given formulas of future indefinite tense. So tell me formula of future indefinite tense. formula बताइए future indefinite tense का. Hello. Anybody can tell formula of future indefinite tense. What will be? Subject plus will shall plus verb first form plus object. Okay. Then negative. subject Yes. will shall plus Yes. not plus verb की first form plus object. Yes. Very good. Then interrogative. Yes. will shall or WH word plus subject plus verb की first form plus object. Okay. Then WH word, after it will shall, and after it subject, and then plus verb की first form yes. plus object plus Yes. question mark. Okay. So now students, these are all the things I have already told you, and something else I have already told you. Can you tell me what was it? क्या और बताया था मैंने? 2 टाइप्स का होता है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस जो है वो 2 टाइप्स का होता है. आई हैव टोल्ड यू ना. Yes ma'am. हाँ, तो व्हाट आर 2 टाइप्स? फर्स्ट Simple future and colored future. Simple future and colored future. Something I have told you also about simple future. Yes, in simple future we use IV, and with it what we use? IV के साथ हम क्या यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर में? shall. Shall. Can you give any example of simple future? Hello? Can you give any example of simple future? आप simple future और colored future अलग अलग बताते हैं हम आपको. So that is why you should give. Can you give me? I have already told you. Can you give me example of simple future tense? I and we. After it, shall will be used. Can you give any example? Okay. We shall go to school. Okay. Then this is simple future. This is the normal sentence. That is why we has taken here shall. Okay. And others, it means he, she, it, and they. In simple future takes क्या लेते हैं? Will. Okay. Okay. Then other part is colored future. Colored future. How will you tell about colored future? I and we take. I और we क्या लेता है colored future में? Will. Well, in the place. Yes, will in the place of shall. Okay. Then in colored future, others what take? He, she, it, and they.
what take shall. Okay, so these are the vice versa of it. Okay, in simple future and in colored future, both are different things. यानी दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं. सिंपल फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, और अदर्स के साथ यानी अदर्स में ही, शी, इट, दे एंड नेम. ओके, उनके साथ क्या यूज करते हैं हम? वेल. एंड कलर्ड फ्यूचर में आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? वेल. एंड ही, शी, इट, दे के साथ शैल. एंड I have already told you about the specific situation. Which are the specific situations used here in colored future? Yes. What I have? Determination. Form determination. Yes. Okay. Can you tell any word which shows firm determination? कोई ऐसा शब्द आप बता सकते हैं जो कि firm determination शो करता हो? Hello students, can you tell me? बताइए कोई ऐसा वर्ड जो कि फर्म डिटर्मिनेशन शो करता हो और जिसे हमें लगे कि फर्म डिटर्मिनेशन है उसमें. बताइए. पता है? फर्म डिटर्मिनेशन का मतलब होता है ऐसा चीज जिसमें आप पूरी तरह से डिटरमाइंड हो, कंफर्म हो, डेफिनेटली. ओके, जब डेफिनेटली वर्ड यूज होगा तो फर्म डिटर्मिनेशन होगी. नेक्स्ट थिंग व्हाट इज? और क्या चीज होती है? सेकंड. यस, रिवाइज इट. व्हाट? बताइए. नेक्स्ट willingness. What is the meaning of willingness? Willingness का क्या मीनिंग होता है बच्चों? Willingness क्या होता है बच्चों? Hello, tell me what is the meaning of willingness? Will क्या होता है? Will. हाँ, यस. तो विलिंगनेस इच्छा. यस यस, इच्छा. यानी जब हमारी तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग विल जहाँ पर यूज होती है वहां पर हम क्या यूज करते हैं? ये यानी कलर्ड फ्यूचर. आई और वी के साथ वेल और अदर्स के साथ में शैल. ओके, डन. विलिंगनेस. आफ्टर इट व्हाट विल बी? प्रॉमिस. And how do you know about promise? Promise क्या होता है? जैसे कि वादा करना, तो वो भी क्या लेता है? Colored future. क्या लेता है? Colored. Yes. So next और भी बताया था मैंने. What was? Threat. Yes, threat. T-H-R-E-A-T. Okay. And what is the meaning of threat? Threat का meaning क्या होता है? धमकी देना. यस यस. तो बेटा ये जो होता है, ये सारे वर्ड्स जो है, अभी हमने एक चीज रॉन्ग कर रखी है. आई वांट टू टेल यू. इंग्लिश में हम क्या करते हैं? ये नहीं करते यूज, ये एरोज वगैरह. गलती से मैं भी यूज कर लेती हूँ, बट ये रॉन्ग होता है. समझ रहे हैं? ये एरोज नहीं आते. अगर हमें कोई चीज सामने की दिखानी है, हमेशा याद रखना, नहीं तो मार्किंग कम हो जाएगी. इसमें हमेशा कॉलम आता है, यही यूज होता है हमेशा. ओके, देन फॉर्म डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, प्रॉमिस और थ्रेट. ये बताया था मैंने आपको. ये क्या लेता है? कलर्ड फ्यूचर. ओके, एंड इन कलर्ड फ्यूचर इज वाइस वर्सा ऑफ सिंपल फ्यूचर. जैसे आई और वी के साथ सर यहाँ, तो आई और वी के साथ वेल यहाँ. कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ थ्रेट? और can you give me any example of firm determination? I'll do my homework today. I will do my homework today. Complete नहीं है क्या अभी? अच्छा, you may use it definitely. I will
complete my homework today definitely. Okay, this is called formal determination. Okay, next, can you give an example of willingness? देखिए वो वहां मुझे देखने आना पड़ेगा, दैट्स वाई कोई बोल सकता है तो बोल के बताइए विलिंगनेस का कोई एग्जांपल. इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं. I will watch cricket match today. Definitely. डेफिनेटली इज नॉट यूज हियर. विलिंगनेस, आई विल वॉच, हाँ जरूरी नहीं है इसमें. आई विल वॉच क्रिकेट मैच, Cricket match. या आई लाइक टू वॉच क्रिकेट मैच. आई विल नहीं, लाइक नहीं आएगा. आई विल वॉच क्रिकेट मैच टुडे. यस, करेक्ट वन, विलिंगनेस. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉमिस का बताइए कोई सा सेंटेंस. एंड ही हैज गिवन हियर. प्रॉमिस का बताइए. बताओ कोई प्रॉमिस का है आप लोग को याद होगा तो बोलिए. I will promise him to give my book. देखिए प्रॉमिस की जरूरत नहीं है इसमें. आई विल गिव बैक योर बुक, इसका प्रेजेंटेशन ही हो गया प्रॉमिस का. ओके, Yes, ma'am. ठीक है. ओके, देन थ्रेट का आपको पता ही है, कई बार कई बहुत सारे एग्जांपल. आई विल किल यू, आई विल बीट यू, दीज आर आल्सो. इसी तरह से आपको करने होंगे फ्यूचर एंड कलर्ड, वो सिंपल फ्यूचर एंड कलर्ड फ्यूचर. इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे Yes, ma'am. चलें. बस इसमें यूजेस नहीं है बच्चों, यूजेस यही है, यही यूजेस हैं इसके. इसमें क्या है, इट इज यूज टू स्टेट सिंपल फ्यूटरिटी. सिंपल फ्यूटरिटी ये है और ये है कलर्ड फ्यूटरिटी. एंड ऑल द एग्जांपल्स आर गिवन. उसके अलावा ये होता है टेम्पोरल क्लॉजेस. टेम्पोरल क्लॉजेस क्या होता है? इफ क्लॉज को टेम्पोरल क्लॉजेस भी बोलते हैं. इफ क्लॉज, ठीक है. इसमें भी ये इफ क्लॉज में भी, टेम्पोरल क्लॉजेस में भी ये यूज होता है. टेम्पोरल का मतलब शर्त है ना. तो जो इस तरह के वाक्य होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, टेम्पोरल क्लॉज होती है, इफ क्लॉज होती है. इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं. कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्यूचर? हमने आपको टेम्पोरल क्लॉज पहले से ही समझा दिए, क्लॉजेस बताए थे ना. आई हैव टोल्ड यू कंडीशनल सेंटेंसेस. देन कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने क्या बताया था बताओ? आपको बताए थे या नहीं बताए थे कंडीशनल सेंटेंसेस? हमने जल्दी बताइए. नेक्स्ट, आई विल स्टार्ट. Yes, ma'am. तो क्या बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस में? हैव यू रिटन दिस? हाँ, मैम जब फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वहाँ पे कैन, शैल, विल यूज होता है. यस. और क्या होता है था? तो मैम अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वुड और कुड और शुड यूज होता है. और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इफ क्लॉज में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या लेता है? वुड हैव नहीं, वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव. ये बताया था मैंने. तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है. अब एक एग्जांपल इसमें यूजेस में और है. क्या एग्जांपल है? जैसे इफ यू वर्क हार्ड, you will pass. If you work hard, तो क्या होगा? You will pass. ठीक है? Is it clear to you? आगे समझ में? Yes, ma'am. तो अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते हैं इसमें. आप ऐसे लिख लो यूजेस में. देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस बस ये यूजेस हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के. इज इट क्लियर टू यू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? अब यू may do yourself. No, ma'am. Okay, so now we will start future continuous. Now write down all of you future continuous tense.
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं आप? फॉर्मूला बताइए पॉजिटिव का. डू यू नो? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस क्या आता है? बी प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. इन द सेम मैनर इन नेगेटिव क्या आता है? Subject plus will. यस सब्जेक्ट प्लस विल शैल Plus not. प्लस नॉट प्लस बी Be. प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. हैव यू रिटन दिस? Yes, ma'am. Have you written all of you? Hello students, Yes, have you ma'am. written? Yes, ma'am. Okay, beta. Interrogative. Who is saying no? Interrogative. Okay. In interrogative sentences, will shall. In starting, plus subject plus be plus verb first form plus ing plus object plus question mark. Okay students, and you may use WH word also. समझ गए? WH word भी आप यूज कर सकते हैं. इससे पहले जब कभी नीड हो WH word यूज कर लेंगे. अदरवाइज will shall helping verb है, ये HB टाइप का लगेगा और ये WH टाइप. ओके. So now uses. Now you write uses. Have you written this? Yes, ma'am. इसमें देखिए it is used for an action. It is used for an action that will remain in progress at some time in future. Sorry. In future. Okay. देखिए it is used for an action that will remain in progress at some time in future. Have you written this? Have you written all of you? Yes, ma'am. Okay, bachcho. Then make of this. Yes, ma'am. What are the timings to come in the class? So now, can you give any example? We shall be playing a hockey match. क्रिकेट या हॉकी कुछ भी लिख लो. हॉकी मैच 4 o'clock या 4 PM कुछ भी लिख दो. Tomorrow. Yeah. So we shall be playing a hockey match at 4 PM tomorrow. तो ये क्या है? इसमें ये बताया गया है कि जो प्लान है ना मतलब उसको खेलने का और वो कंटिन्यूस वर्क होगा फ्यूचर में, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. क्लियर टू यू? आया समझ में? Yes, ma'am. यस. नेक्स्ट पॉइंट. Yes, ma'am. Yes. Have you written also? Also? Yes, ma'am. Anshul Pandey, have you written also? Okay.
Next point, it is used for future plans that already been decided. ओके, समझ आ गया? जो कि पहले से ही डिसाइडेड हो उनके लिए हम फ्यूचर प्लान्स जो कि पहले से दैट ऑलरेडी बीन डिसाइडेड हम उनके लिए यूज करते हैं. ठीक है, जैसे रमेश will be putting up with you and Rita with us. अब देखो बच्चों, इसके अंदर देखिए दो चीजें हैं. क्या होता है, रमेश विल बी पुटिंग अप विद यू, यानी रमेश तुम्हारे साथ में पुट किया जाएगा, मतलब रखा जाएगा. ये कोई प्रोग्राम है या कहीं जा रहे हैं या कुछ भी है तो उसके लिए. एंड रीता विद अस, और रीता को हमारी तरफ. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये जो है आपको फ्यूचर प्लान के लिए बता रहा है. यानी इसमें सिर्फ फ्यूचर प्लान बनाया जा रहा है कि किसको किसकी तरफ रहना है. तो ये किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर प्लान्स के लिए. और एक चीज हमने आपको दूसरी क्या बताई थी, रिमेन इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कुछ समय के लिए वो मैच खेला जाएगा या हॉकी खेली जाएगी या क्रिकेट खेला जाएगा. तो इसके प्रोग्राम के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस हैज बीन कंप्लीटेड नाउ. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टेंस, सब चीजें आपको इसमें बता दी गई हैं, यूजेस आपको बता दिए गए हैं. इससे ज्यादा यूजेस नहीं है इसके. वैसे फ्यूचर टेंस का कम यूज होता है सेंटेंस मेकिंग में बहुत, और वैसे भी एग्जामिनेशन में भी इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी सब चीज़ें पूरी तरीके से आपको नॉलेज होनी चाहिए. ऑल्दो अभी इसको कई लोग पढ़ाते भी नहीं है फ्यूचर टेंस को, क्योंकि दोनों को मान लेते हैं और फ्यूचर टेंस को मॉडल्स में पढ़ा देते हैं. बट आई एम टीचिंग यू बिकॉज it is also necessary to tell you about this. Okay, so now future continuous is completed. Have you any problem? If you want to ask anything else, क्या बोलो बोलो. No ma'am. क्या पायल, क्या क्या बोल रहे हो, क्या पूछना है आपको? Hello students, if you want to ask anything, then you may ask. Otherwise, I want to close the class because of future tense has been future continuous tense, progressive tense is completed now. इसमें दो ही यूजेस हैं. फ्यूचर प्लान के लिए यूज किया जाता है और कुछ टाइम तक जो वर्क चलने वाला हो, प्रोग्रेस में हो, उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है. ओके, एंड टुमारो इसमें स्पेशली यूज किया जाता है, सभी को पता है. इसमें नेक्स्ट यूज किया जाता है, NEXT नेक्स्ट. ओके, thank you students. Thank you. Have a nice day all of you.